Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 12th, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो है, सरफेस केमिस्ट्री जो है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो एक्चुअली कैटालिसिस है। कैटालिसिस और कैटालिसिस के बारे में हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट जो होते हैं, these are the substances which when used in a chemical reaction they change the rate of the reaction. They either increase the rate of the reaction or decrease the rate of the reaction. Those catalysts which increase the rate of the reaction are called as positive catalysts, and those which decrease are called as negative catalysts. Generally we take those catalysts as catalysts which increase the rate of the reaction. When we use the term catalyst, it is generally used to indicate only positive catalysts, and those which increase the rate of the reaction. And we have seen that this catalysis, it is of two types. One is called as homogeneous catalysis, and another one is called as heterogeneous catalysis. We have discussed both these types of catalysis in detail. In homogeneous catalysis, the catalyst is in the same phase in which the reactants are existing. That means if reactants are in liquid phase, catalysts are also in the liquid state. Or if reactants are in solid state, the catalyst is also in the solid state. If reactants are in gaseous state, the catalyst is also in gaseous state. Then such a type of catalyst which is in the same state as that of the reactants, they are called as homogeneous catalysts. While as the reaction is where the catalyst is in a different state, where catalyst is in different state or in different phase than the reactants, such catalysts are called as heterogeneous catalyst, and the catalyst is called as heterogeneous catalysis. We have explained both these types of catalysis by citing different examples of each type. And later on we have also discussed the theories of homogeneous catalysis as well as heterogeneous catalysis. There is no need to go into details of those theories because we have once discussed them in detail. And in this catalysis, yesterday we have discussed zeolites and have also given you the introduction of enzymes. We have discussed zeolites and also have given you an introduction of enzymes along with certain examples. So zeolites, as has been discussed, they are also called as boiling cetones. You know why? Because actually zeolites are metal salts of aluminosilicates. They are metals of aluminosilicates. That means they contain aluminum and silicon bonds and having different types of metals in them. The metals can be sodium ion, potassium ion, magnesium ion, manganese ion, copper ion, cobalt ion, whatsoever the cases may be. Different types of zeolites are there. And actually these zeolites, why they are called as boiling cetones, you know, they are actually porous substances, porous solids, and these porous solids contain water in their pores. When we heat this zeolite, the water from the pores boils, comes out, and the space or vacant space created there
by the boiling of water is taken by the substrates, by the reactants, and then the reaction takes place. So these zeolites, they also act as catalysts, and they are used in converting hard water into soft water. These things have been discussed yesterday in detail, and I have given you an introduction of enzymes also. Let me repeat this thing about enzymes because we haven't yet completed the enzymes completely. So today we will discuss this last topic which I have told you. Enzymes is actually the last topic of catalysts. So we will discuss these enzymes which we have yesterday discussed. Actually there we have introduced this thing. So today we are going to discuss these enzymes a little in detail. As per enzymes are concerned, these are the biological catalysts. Biological catalysts which are used to catalyze the biochemical reactions taking place in the bodies of living organisms. As you know, in the bodies of living organisms, a large number of chemical reactions are taking place, which we generally call, in the terms of biology, we call the changes taking place in the bodies of living organisms as metabolism, which we distinguish into two types, catabolism and anabolism. Both of them are actually chemical reactions taking place in the bodies of living organisms. So, in the bodies of living organisms, when reactions take place, each and every reaction in the body is catalyzed by a catalyst. That means for every chemical reaction there is a catalyst in the body. हमारी बॉडीज में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए अपना एक अलग अलग एंजाइम है. यानी बायोलॉजी में, बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी रिएक्शन होती है वो कैटलिस्ट के बगैर नहीं होती है. हर एक रिएक्शन के लिए अपना अलग कैटलिस्ट है. इसलिए जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, उन सब रिएक्शंस के लिए, हर एक रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग कैटलिस्ट है. तो वही कैटलिस्ट जो हैं, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं कैटलिस्ट्स को हम नाम देते हैं एंजाइम. सो एंजाइम्स are the biological catalysts. Those catalysts which are used to catalyze the reactions taking place in the bodies of living organisms, those catalysts are given a special name which we call enzyme. जैसे कि कल भी मैंने आपको बता दिया कि एक सिंगल सेल में, in a single body cell, about 3,000, rather more than 3,000 reactions take place. More than 3,000 reactions. एक सेल में 3,000 से ज्यादा रिएक्शंस हो रही हैं. जैसा मैं कह रहा हूं कि हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक सेल में 3,000 से ज्यादा कैटलिस्ट, ज्यादा एंजाइम्स मौजूद हैं. ये बात फिर से नोट कीजिए कि हर एक रिएक्शन के लिए
अलग अलग एंजाइम है, अलग अलग कैटलिस्ट है। इसलिए जितनी रिएक्शंस हो रही हैं, हर रिएक्शन के लिए अपना अलग कैटलिस्ट होगा। तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किया था वो ये कि ये जो एंजाइम्स होते हैं इनकी एक्टिविटी जो होती है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, द एफिशिएंसी ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो बहुत ज्यादा होती है, हाई। दे हैव वेरी हाई एफिशिएंसी, एंजाइम्स हैव वेरी हाई एफिशिएंसी, वेरी हाई एफिशिएंसी। इसकी एग्जांपल मैंने कल आपको बता दी थी कि अगर हम सपोज एक टाइम का मील लेते हैं, वन टाइम मील, एक बार जो हम गुज़ा खाते हैं, अगर हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो इस मील को डाइजेस्ट करने के लिए, अगर हम यूं ही इस फूड को छोड़ देंगे विदाउट एंजाइम्स, वी विल लेट दिस फूड टू गेट डाइजेस्टेड, तो एक टाइम का मील जो है इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इट विल टेक 50 years टू डाइजेस्ट वन मील। अब आप खुद देख लीजिए, जब हमारी बॉडी में जब हम एक वक्त का गुज़ा लेते हैं तो it has been proved, rather it has been shown that one time of meal is completely digested within 3 hours. 3 घंटों के अंदर अंदर हमारा एक टाइम का गुज़ा जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए, जो रिएक्शन, जो काम एंजाइम के बगैर 50 साल में पूरा होगा, वो काम एंजाइम की मौजूदगी में सिर्फ 3 घंटों में पूरा हो रहा है। तो इस चीज से आपको अंदाजा होगा कि एक एंजाइम जो है कि ये कितना फास्ट रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन को कितना फास्ट कराता है, हाउ मच इट चेंजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding the efficiency of the enzymes. Enzymes enhance, rather they increase the rate of the reaction to a larger extent. Even it has been shown that in some cases the rate of the reaction is increased by a factor of 10 raised power 22. So these enzymes have a very high efficiency, very high efficiency. And one thing more which we have discussed yesterday, that is there are different types of enzymes which, as I have told you, different types of enzymes catalyze different reactions. For every reaction, there is a different enzyme. And yesterday we have given you so many examples of enzymes. You may be remembering them. One of the enzyme is invertase. This enzyme is used to convert starch, sucrose, into glucose and fructose. Then there is another enzyme that is called as maltase. This maltase is used to convert maltose into glucose. You can't, though sucrose and maltose, you see, sucrose is converted by invertase, maltose is converted by maltase. Sucrose is having a molecular formula of C12H22O11, and maltose has the same molecular formula, C12H22O11. दोनों की molecular formula एक जैसी है, but they are two different compounds. तो sucrose को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें इन्वर्टेज की जरूरत पड़ती है, और ये इन्वर्टेज इस सक्रोज को चेंज करता है इनटू ग्लूकोज C6H12O6 and fructose C6H12O6. This is sucrose, this is fructose. I have told you that these are two isomers, the compounds having same molecular formula but different structures, they are isomers. While as in case of maltose, when it is acted upon, when it undergoes hydrolysis, when maltose C12H22O11 undergoes hydrolysis, that it goes addition of water, the enzyme used is maltase, and it converts it into 2 molecules of glucose C6H12O6 2 times. So different products are formed,
Different enzymes are used for different chemical reactions. Yesterday, I have given you so many examples. This was just a repetition what we have stated yesterday. So I will repeat it once again, just to give you a simple understanding of these enzymes. Enzymes are the biological catalysts, those catalysts which catalyze the reactions taking place in the bodies of living organisms. These catalysts are generally proteins. They are proteinaceous in nature, generally globular proteins. So these enzymes, they catalyze biological reactions. For every reaction, there is one catalyst, one enzyme. One enzyme is meant for one reaction. These enzymes, they increase the rate of a reaction to a larger extent, and there are so many reactions taking place in the bodies of living organisms. As I have just now told you that in a single cell, more than 3,000 reactions take place, and so more than 3,000 catalysts are present in a single cell. So today we are going to discuss characteristics of enzymes. आज का टॉपिक जो है that is characteristics of enzymes. Almost enzymes के characters जो हैं they resemble with the characters of heterogeneous catalysts. जिस तरह से heterogeneous catalysts जो हैं इनके अपनी these characters हैं, इसी तरह से enzymes जो हैं इनके अपने characters हैं. इनमें से कुछ characters ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं. मैं फिर से उन्हें रिपीट करूंगा और साथ साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा. मुमकिन है कि जो एग्जाम्पल्स मैं अब कोट कर लूं वो कुछ नए एग्जाम्पल्स होंगे. तो इन कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर जो है एंजाइम्स का, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी. द फर्स्ट कैरेक्टर इज स्पेसिफिसिटी. तो ये जो स्पेसिफिसिटी है नाम से जाहिर है. स्पेसिफिसिटी का मतलब हो गया ईच एंजाइम catalyzes only one chemical reaction. Each enzyme catalyzes one chemical reaction. आप समझ गए. इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटलिस्ट हम एक रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, जो एंजाइम एक बायोलॉजिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, वही एंजाइम दूसरी बायोलॉजिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा. बज़ाहिर वो एक जैसे भी होंगे. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी सक्रोज और माल्टोज की. दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे C12H22O11. फिर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो लगते तो एक जैसे मगर थोड़ी डिफरेंस है. सक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, जबकि माल्टोज में सिर्फ ग्लूकोज बनता है. अब आप एक और एग्जांपल लीजिए. हमारे पास एक बायोलॉजिकल कंपाउंड है जिसको हम यूरिया कहते हैं. यूरिया की मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH2CONH2. जब हम इस यूरिया की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस जब इसकी हो रही है तो यह हाइड्रोलिसिस हो रही है in presence of an enzyme called as urease. UREASE. यूरियस एंजाइम है. ये यूरियस एंजाइम जो है, जब यूरिया की हाइड्रोलिसिस इसकी वजह से हो रही है, दिस यूरिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अमोनिया. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया, या कभी कभी सिर्फ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम इसी यूरिया से मिलता जुलता एक और सबस्टेंस ले रहे हैं. उसका नाम है नाइट्रोजन मिथाइल यूरिया. ये देखिए यूरिया की फार्मूला क्या है, NH2CONH2. दूसरा कंपाउंड जो है देखिए उसकी फार्मूला है, मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3
NHCONH2। अब देखिए फर्क क्या है N में। इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोजन मिथाइल यूरिया। नाइट्रोजन मिथाइल यूरिया, आप समझ गए ये नाम इसे क्यों दिया गया है। यूरिया जो था ये था NH2CONH2। ये देखिए NH2 जो है यहां पर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हैं। टू हाइड्रोजन एटम आर बॉन्डेड विद नाइट्रोजन एटम। तो इस दूसरे कंपाउंड में one of the hydrogen atoms from nitrogen has been replaced by CH3 group। तो इसीलिए इसको हम नाम देते नाइट्रोजन मिथाइल, क्योंकि हमने नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिप्लेस किया बाय मिथाइल। या अभी कह सकते हैं कि यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है इट इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, इसलिए हम इसको नाम देते हैं नाइट्रोजन मिथाइल यूरिया। जब हम इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करना चाहेंगे, आपने देख लिया मामूली सी चेंज आ गई, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया मिथाइल ग्रुप से, बाकी कंपाउंड जो है वो बिल्कुल यूरिया से मिलता जुलता है। The only difference between the two is that in this nitrogen methyl urea there is one methyl group in place of hydrogen। बाकी बॉन्डिंग जो है यूरिया और नाइट्रोजन मिथाइल यूरिया में ये एक जैसी है। तो इसलिए अगर आप यहां पर इसी एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, यूरियस का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये यूरियस जो है it is unable to hydrolyze nitrogen methyl urea। तो इसकी वजह से आप देखेंगे यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस तरह से यूरियस एंजाइम जो है इट इज मींट फॉर ओनली वन रिएक्टेंट, दूसरे रिएक्टेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये एक एग्जांपल है, फर्दर वन मोर एग्जांपल जो हमें एक्सप्लेन करता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, यानी एक एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद दूसरा कैरेक्टर जो है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया उसको एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स जो हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी है, दे आर हाईली एफिशिएंट। आप ये कह सकते हैं एंजाइम्स जो हैं दे आर हाईली एफिशिएंट। इनकी एफिशिएंसी का अंदाजा जो है वो हमें इस बात से हो रहा है that there are many enzymes which increase the rate of the reaction by a factor of 10 raised power 22। That means rate of the reaction is increased millions of times by using an enzyme in a reaction। High efficiency, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक टाइम का मील, वन टाइम मील, if digested without an enzyme at the body temperature it will take 50 years। while as in presence of this जो पहली बात मैं कह रहा हूं one time meal takes 50 years, it is without enzymes। जब एंजाइम्स के बगैर रिएक्शन होगी तो 50 साल लग जाएंगे एक वक्त के खाने को हजम करने में। उसके बरक्स यही वन टाइम मील जो है it gets digested in just 3 hours, but in presence of an enzyme। तो इस चीज से हमें अंदाजा होता है कि ये जो कैटलिस्ट्स हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। अब एक और एग्जांपल लीजिए इसमें, मिसाल तौर पर जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स आर चेंज्ड इनटू पेप्टाइड्स। Proteins are changed into peptides by an enzyme called renin। ये जो एंजाइम होता है it is present in the stomach। तो स्टमक में ये एंजाइम जो है ये बॉडी टेम्परेचर पे प्रोटीन्स को आसानी के साथ पेप्टाइड्स में चेंज करता है। अब प्रोटीन्स जो है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीमर्स ऑफ
alpha amino acids. Proteins are polymers of alpha amino acids. ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा. अल्फा अमाइनो एसिड, पहले देखिए अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स नाम इंडिकेट करता है कंपाउंड्स which have both amino group as well as acidic group. Acidic group जो होता है that is COOH group. ये जो लिविंग बॉडीज में जो एसिड्स होते हैं उनमें COOH ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, इसलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं. तो अमाइनो ग्रुप जो है दैट इज NH2 ग्रुप. तो इसका मतलब हुआ ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये दोनों ग्रुप मौजूद हों, COOH ग्रुप भी NH2 ग्रुप. ठीक है ना. अगर एक ही कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप मौजूद होंगे, मिसाल तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, CH3 CHNH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH. ये कंपाउंड जो है, आप कंपाउंड से पहले से वाकिफ हैं बायोलॉजी में, आपने इस केमिस्ट्री में आपने पिछले साल नॉमेनक्लेचर में ये चीज अच्छी तरह से डिस्कस किया है. अब ये कंपाउंड देख लीजिए, इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक COOH है, एक ग्रुप है NH2. तो हमने पढ़ा है कि जब एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो उनमें से एक ग्रुप जो है दैट इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो होता है दैट इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सबस्टिट्यूएंट. यानी जब हमारे पास एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो दूसरा होता है दैट इज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट. वो आपको मालूम है, आपने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर में कि जब एक से ज्यादा ग्रुप्स मौजूद हों तो किस ग्रुप को हम ट्रीट करेंगे एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और किसको ट्रीट करेंगे एज सबस्टिट्यूएंट. तो उसका आपके पास एक लिस्ट पिछले साल लगा हुआ है नॉमेनक्लेचर में, वो आपने अच्छी तरह से पढ़ा है. तो इस कंपाउंड की जहां तक बात है, क्योंकि COOH ग्रुप जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड यही होगा. तो ये फंक्शनल ग्रुप COOH जो है ये फंक्शनल ग्रुप तस्वीर किया जाएगा, NH2 जो है ये सबस्टिट्यूएंट तस्वीर किया जाएगा. इस अगर आप इस कंपाउंड को IUPAC नेम देना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन हमारी जो है वो ये है 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स हैं. और फिर नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में आपको मालूम है वहां से नंबरिंग कर लो जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा. तो जाहिर सी बात है हमें नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी 1 2 3 और 4. जिस कंपाउंड में 4 कार्बन है उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, है ना. तो फिर क्या करना है, फिर देखना है कार्बन एटम्स के दरमियान कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एन. अगर डबल बॉन्ड होता तो इन लगाना था, ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाई लगाना था. और फिर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन है, COOH है, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ओइक एसिड. और फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ कार्बन नंबर 3 पे अमाइनो ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं अमाइनो ग्रुप जो होता है ये सबस्टिट्यूएंट है, ये पहले लिखा जाता है, तो यहां पर लिखा जाएगा 3 अमाइनो. तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 3 अमाइनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड. ये इसका IUPAC नेम है, 3 अमाइनो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड. ये कंपाउंड है चूंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, इसलिए हम इसको कहते हैं अमाइनो एसिड. तो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं बायोलॉजी में इनके कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू देयर IUPAC नेम्स. बायोलॉजी में इन कंपाउंड्स जिन्हें हम अब अमाइनो एसिड्स कहते हैं, जिनमें अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज कंपेयर टू IUPAC नेम्स. तो कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, कॉमन नेम में भी हम एक्चुअली नंबरिंग ही करते हैं कार्बन एटम्स की. जो लॉन्गेस्ट चेन है मेन कंपाउंड की, इसकी नंबरिंग करते हैं, मगर नंबरिंग में हम 1 2 3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं. नंबरिंग में हम वहां पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. और अल्फा हम उस कार्बन एटम को नाम देते हैं जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो,
क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप ये है COOH, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, ये वाला गामा कार्बन है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, जिस कार्बन पर सबस्टिट्यूएंट है ये बीटा कार्बन है, तो आप कह सकते हैं आप, तो इस कंपाउंड का नाम जो है इट इज बीटा अमाइनो, क्योंकि बीटा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है, बीटा अमाइनो। अब ये जो एसिड है, ये जो एसिड है, इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले एसिड का कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड, आईयूपीएसी नेम है ब्यूटेनोइक एसिड, कॉमन नेम है ब्यूटायरिक एसिड, तो ये बनेगा बीटा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, बीटा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है ना। तो ये तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। मगर मैंने आपको ये बता दिया कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो अल्फा अमाइनो एसिड का मतलब क्या हुआ, क्योंकि बीटा अमाइनो एसिड आपने अंडरस्टैंड कर लिया, बीटा अमाइनो एसिड वो है जहां पर अमाइनो ग्रुप बीटा कार्बन पे है। अब अल्फा अमाइनो एसिड कौन हुआ, जहां पर अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप होगा। तो इसका मतलब हुआ, अगर इस तरह से हमारे पास कंपाउंड होगा CH3 CHNH2 COOH, और इस तरह से कंपाउंड होगा, तो इस कंपाउंड में आप देख लीजिए 1 2 और 3 कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप। इस मेन फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा दैट इज अल्फा कार्बन, और ये वाला है बीटा कार्बन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं अल्फा अमाइनो, अल्फा अमाइनो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। तो ये एसिड, ये अल्फा अमाइनो एसिड जो है, ये अमाइनो एसिड जो है, ये अल्फा अमाइनो एसिड है, इसलिए क्योंकि यहां अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप, यही अल्फा अमाइनो एसिड जो हैं, यही पॉलीमराइज होके प्रोटीन बनाते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन हो रही है। सपोज अगर मैं इसी अल्फा अमाइनो एसिड की मैं पॉलीमराइजेशन दिखा दूं, तो मैं इस तरह से भी इस कंपाउंड को लिख सकता हूं CHNH2 CH3 COOH, है ना। देखिए ये CH3 ग्रुप जो नीचे की तरफ लिखा CH3 CH, इस पे NH2 ग्रुप है, यहां मैंने ऊपर लिखा था, यहां मैंने इस साइड पे लिखा NH2, तो ये COOH ग्रुप, ठीक है ना। अब अगर ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल आएगा NH2 CH CH3 COOH, ठीक है ना। ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, किस तरह से, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक OH निकलेगा, यानी यहां 2 हाइड्रोजन थे, इस तरह मैं 2 हाइड्रोजन अलग अलग बनाऊं, तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक OH बाहर आके वाटर बनाएंगे, वाटर बाहर निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन होगी। तो यहां पर क्या बनेगा NH2 CH CH3 CO, ये CO इस NH के साथ बॉन्ड बनाएगा, NH CH CH3 COOH। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब अगर तीसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा, वो यहां इस COOH और तीसरे मॉलिक्यूल का NH2 रिएक्शन करेगा, इस तरह से यहां से COOH इस NH2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ये अल्फा अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसे हम पॉलीमर कहेंगे। उसी पॉलीमर को फिर हम नाम देते हैं, कभी पेप्टून, कभी पेप्टाइड, कभी प्रोटीन, जो आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ये इनके साइज पे डिपेंड करता है कि कितने अल्फा अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके उन्होंने पॉलीमर बनाया होगा। जनरली प्रोटीन जो होता है, इसमें हजारों की तादाद में ये अल्फा अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटीन या एंजाइम का मॉलिक्यूलर मास 50,000 to 10 लाख ग्राम पर मोल होता है। ये इतना ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन अल्फा अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो खैर यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे बताना है कि जिस वक्त एक अल्फा अमाइनो एसिड दूसरे अल्फा अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, तो होता क्या है, एक मॉलिक्यूल का COOH
दूसरे मॉलिक्यूल के NH2 के साथ रिएक्शन करके ये बॉन्ड बनता है CONH बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं अमाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अमाइड बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे अमाइड बॉन्ड्स बनेंगे, इसलिए इन प्रोटीन्स को हम पॉलीएमाइड्स भी कहते हैं। आप समझ गए ना। अब अगर हमें इसी प्रोटीन को, इसी पॉलीएमाइड को ब्रेक करना होगा, इसका मतलब है ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये खाली ब्रेक ही नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस में वाटर यहां से ऐड होगा, वाटर ऐड होके OH इस पे जाएगा, हाइड्रोजन इस पे जाएगा, फिर से दो अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स वजूद में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रोटीन्स की, यानी हमारी बात जो है एक्चुअली, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं, मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं कि जब हमें एक प्रोटीन चेंज करना होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी होगी, इसका एमाइड बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इसको वापस अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो एक प्रोटीन को अल्फा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लेबोरेटरी में ये रिएक्शन करेंगे, इफ यू विल कैरी दिस रिएक्शन इन द लेबोरेटरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रही है। सिंपली वाटर ऐड नहीं करना पड़ता है। लेबोरेटरी में प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करने के लिए, अमाइड बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एक तो अल्कली का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरा ये कि हमें इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ता है स्ट्रांगली। हमें रिएक्शन मिक्सचर को हीट भी करना पड़ता है, स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, और वो भी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स। जब हम 2 से 3 घंटों तक कंटिन्यूअसली प्रोटीन को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली इन द लेबोरेटरी, तब जाके ये बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोलिसिस होती है और अल्फा अमाइनो एसिड बनता है। उसके बरक्स अगर हम यही रिएक्शन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हम करेंगे इन द लेबोरेटरी, तो इसके लिए हमें सिंपली एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, पेप्टोन्स की जरूरत, रेनिन की जरूरत पड़ेगी। रेनिन एंजाइम जो है वो इन प्रोटीन्स को ब्रेक करता है और बनाता है पेप्टोन्स, यानी यही पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं दे टेक प्लेस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ दिस रेनिन एंजाइम एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और नॉर्मल पीएच की जरूरत पड़ती है, और सिंपली ये रिएक्शन आसानी के साथ हमारी बॉडी में होती है। कोई स्ट्रांग कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती और रिएक्शन फास्ट है, इजीली हो जाती है। यहां पर 2-3 घंटे के बाद हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होती है लेबोरेटरी में, स्ट्रांग कंडीशंस अप्लाई करके। उसके बरअक्स यही रिएक्शन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इजीली होता है at body temperature and normal pH, simply in presence of an enzyme renin। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये एंजाइम्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि इनकी वेरी हाई एफिशिएंसी है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स, समटाइम्स इन सम केसेस 6 मिलियन टाइम्स रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, स्पेसिफिसिटी एंड एफिशिएंसी। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज स्मॉल अमाउंट। तीसरा कैरेक्टर है स्मॉल अमाउंट। यानी जिस वक्त रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है, एंजाइम की एक मामूली सी तादाद, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम इज यूज्ड। एंजाइम जो है इसकी वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट of the enzyme is used
to carry the reaction. स्मॉल अमाउंट क्यों इस्तेमाल होता है? इसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये एंजाइम एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, तो जैसे हमने होमोजीनियस कैटालिसिस में भी पढ़ा था, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, तो वही प्रोसेस यहां पर भी हो रही है। यानी एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है और यहां पर एंजाइम रिजनरेट होता है। जब एंजाइम एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जो है ये पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है डिसोशिएट होके एंजाइम और प्रोडक्ट बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम जो है इट इज रिजनरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम जो है ये रिएक्शन के दौरान रिजनरेट होता है। जो ही ये रिजनरेट हो गया, एक सबस्ट्रेट को एंजाइम ने प्रोडक्ट में तब्दील कर लिया और खुद एंजाइम रिलीज हो गया। ये एंजाइम अब दूसरी बार सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, फिर रिलीज होगा, फिर रिएक्शन करेगा। एंजाइम जो है ये बार बार इस्तेमाल होता है, इसलिए ज्यादा एंजाइम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम तादाद एंजाइम की इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसका अंदाजा आपको इस चीज से भी होगा कि अगर हम लेंगे एंजाइम रेनिन एंजाइम जो है जो यूज होता है बॉडी में इन द कोगुलेशन ऑफ मिल्क, कोगुलेशन ऑफ मिल्क में क्या होता है, इसमें मिल्क कन्वर्ट हो जाता है इनटू कर्ड, मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, डाइजेशन में, कि छोटे बच्चे जो होते हैं इनमें ये एंजाइम मौजूद होता है, क्योंकि वो दूध पीते हैं, वहां बॉडी में इनका दूध जो है वो फिर कोगुलेट हो जाता है। और फिर आदमी जो जो बड़ा होता जाता है, अगर इंसान दूध का इस्तेमाल कम कर दे तो फिर ये रेनिन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। तो अक्सर बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में दूध का इस्तेमाल लोग कम करते हैं तो उनमें ये रेनिन खत्म ही होता है। फिर अगर ये इंसान बाद में कभी दूध इस्तेमाल करेगा भी तो फिर ये दूध इसमें डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मिल्क जो होता है ये कर्ड में तब्दील होता है इन द बॉडी, इसकी कोगुलेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रेनिन। ठीक है ना? तो देखा गया है कि रेनिन जो है, रेनिन का एक मॉलिक्यूल जो है जो एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, ये 1 मिनट में, इन 1 मिनट 1 molecule of renin coagulates 1 million times the weight of milk into curd। यानी कर्ड के जितना एक रेनिन मॉलिक्यूल का अपना जितना वजन है, ये इसी वजन के 1 मिलियन टाइम्स वजन, दूध के 1 मिलियन टाइम्स वजन को चेंज करता है इनटू कर्ड। सपोज इस तरह मैं समझा दूं, मिसाल के तौर पर अगर एक रेनिन मॉलिक्यूल का वजन सपोज 1 ग्राम होगा, तो 1 मिनट में ये 1 ग्राम जो है इट विल चेंज 1 मिलियन ग्राम्स ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो इस चीज से अंदाजा हमें होता है कि ये जो एंजाइम है इसकी कम तादाद क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है। उसकी वजह फिर एक बार वही है कि इनकी हाई एफिशिएंसी है, ये बहुत जल्द रिपीट होते हैं, रिलीज होते हैं, तो इस वजह से बहुत कम तादाद हमें इनकी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ये हो गया स्मॉल क्वांटिटी। इसके बाद एक और कैरेक्टर है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। optimum temperature and pH। optimum temperature and pH।
तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जनरली हम देख रहे हैं कि लेबोरेटरीज में जो रिएक्शन कैरी की जाती हैं या इंडस्ट्रीज में जो रिएक्शन कैरी की जाते हैं, दोज रिएक्शंस आर जनरली कैरीड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। उसके बरक्स जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं, ऑल दोज रिएक्शंस टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है, उसी बॉडी टेम्परेचर पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी, वो मैक्सिमम होती है। सपोज इंसान में, हमारी बॉडी में, हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑलमोस्ट 310 केल्विन। इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। एंजाइम्स जो हैं वो हाईएस्ट एक्टिविटी जो है इसी टेम्परेचर पे दिखाते हैं। इसी टेम्परेचर पे इनकी मैक्सिमम ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा बॉडी का या इससे ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का होगा तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर से भी। इसलिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी ये दिखाते हैं। इसी तरह से जो बॉडी का नॉर्मल पीएच है, जैसे अभी कह रहे थे 7.5 जो है, 7.5 पे पॉइंट नोट कीजिए कि बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं उनका पीएच होता है 7.5, थोड़ा सा अल्कलाइन। 7 न्यूट्रल हो गया, 7 से ज्यादा जब पीएच होगा तो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, 7 से कम जब होता है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, तो थोड़ा सा अल्कलाइन 7.5 पे ये हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच है। तो इसी पीएच पे ये रिएक्शंस, इनकी एंजाइम्स जो होते हैं, इसी पीएच पे इनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी होती है, इन बेस्ट एक्टिविटी, बेस्ट कैटलिस्ट से एक्ट करते हैं एट दिस टेम्परेचर एंड एट दिस पीएच। अब अगर पीएच किसी वजह से चेंज होगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी पे भी असर पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस हो जाती हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर और फिर कैटलिस्ट भी उन्हीं हाई टेम्परेचर पे एक्ट करता है, जबकि हमारी बॉडी में ये एंजाइम्स जो एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट, इनके लिए हमें हायर टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसी पे ये रिएक्शंस हो जाते हैं। इसके बाद एक और कैरेक्टर है, आज तो हम ये टॉपिक जो सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एक और टॉपिक इसका एंजाइम एक्टिवेटर्स। एंजाइम एक्टिवेटर्स ये आपके लिए आसान है समझना। आपने होमोजीनियस और हेटेरोजेनस स्टेटस में पढ़ा है, या उससे पहले भी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स पढ़ा था ना। प्रमोटर्स जो होते हैं या पॉइजनस जो होते हैं, ये वो सबस्टेंसेस हैं जो एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट को चेंज करते हैं बाय देयर प्रेजेंस। अब अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये कुछ नहीं कर पाते हैं। विदाउट कैटलिस्ट दे डू नथिंग, बट इफ देयर इज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एंड वी एड सर्टेन सबस्टेंसेस व्हिच इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, those substances may be either promoters or they may be poisons. Promoters, you know, are those substances which, when present along with the catalyst, increase the efficiency of the catalyst, increase the activity of the catalyst. इसी तरह से एंजाइम्स में भी ये बात होती है। एंजाइम्स जो होते हैं इनके साथ एक और ग्रुप कभी कभी अटैच होता है, उसको हम को एंजाइम कहते हैं। That part is called as coenzyme. ये coenzyme जो है it acts as a promoter, that means it enhances the activity of the enzyme. Generally ये coenzyme जो होता है it is a non-protein part. ये अक्सर non-protein part होता है which gets attached to the enzyme. ये एंजाइम जो है, इस तरह आप समझिए, एंजाइम जो है, एंजाइम तो खुद प्रोटीन है, अब इसी प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो अटैच हो जाता है, जिसका हम नाम देते हैं बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में भी इसको हम को एंजाइम कहते हैं। तो इसका काम है टू एक्टिवेट, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये जो को एंजाइम, जैसे मैंने कहा नॉन प्रोटीन पार्ट है, अक्सर ये नॉन प्रोटीन पार्ट विटामिन होता है। अक्सर क्या होता है, विटामिन। विटामिन के अलावा ये मेटल आयन्स भी हो सकता है, सपोज सोडियम आयन या मैग्नीज आयन या कोबाल्ट आयन या कॉपर आयन। ये आयन्स जो होते हैं
they get attached to the protein, they get attached to the enzyme and increase the activity of the enzyme. So these non-protein parts are called as coenzymes. So coenzymes are the substances which are generally non-protein parts. They increase the activity of the enzyme. So these are called as coenzymes, या हम इन्हें enzyme activators कहते हैं, इन्हें जो further activity of the enzyme को इंक्रीज करते हैं. इसकी एक एग्जांपल अगर आप देना चाहेंगे, हमारे पास एक एंजाइम है एमाइलेज. एमाइलेज जो है ये स्टार्च पे एक्ट करता है. एमाइलेज जो है ये स्टार्च पे एक्ट करता है. अब अगर हम इस एमाइलेज के साथ सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, सोडियम क्लोराइड ऐड करने से इसकी एक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है, एक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज क्यों होती है? उसका सिंपल रीजन ये है कि सोडियम क्लोराइड जो है इट गेट्स आयोनाइज्ड इनटू सोडियम आयंस एंड chloride ions. Then this sodium ion gets attached to this enzyme amylase. This increases and this sodium ion acts as a promoter, or you may say it acts as a coenzyme. तो जिस तरह से एंजाइम्स में एक्टिवेटर्स होते हैं, इसी तरह से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक्ट करते हैं एज इनहिबिटर्स. नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट, एंजाइम इनहिबिटर्स या आप इन्हें नाम दे सकते हैं पॉइजन्स. इससे बात क्लियर होगी. पॉइजन वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिक्रीज करते हैं. तो इसी तरह से एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं ये भी एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट जो है, एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट जो है ये रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं. तो ये क्या करते हैं, पॉइजन्स क्या करते हैं? पॉइजन्स एक्चुअली जब कैटलिस्ट के साथ when they get attached to the enzyme, क्योंकि हमारा कैटलिस्ट जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम एंजाइम कहते हैं, ये पॉइजन्स जो है एंजाइम के साथ अटैच होते हैं. जनरली ये जो एंजाइम, जैसे आपने हेटेरोजीनस कैटालिसिस में पढ़ा कि वहां पर जो एंजाइम होता है या कैटलिस्ट जो होता है उस पे एक्टिव साइट्स होते हैं. जिन एक्टिव साइट्स पे रिएक्टेंट अटैच होता है, एडजॉर्ब होता है, फिर जाके वहां पर रिएक्शन होती है. तो वही काम यहां पर भी होता है. यानी जो पॉइजन है, पॉइजन गेट्स अटैच्ड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. दरअसल एंजाइम जो होता है इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं पर्टिकुलर प्लेसेस पे, जिन्हें हम एक्टिव साइट्स कहते हैं, क्योंकि वही फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ और इंटरमीडिएट बनाते हैं. तो वो साइट जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल एक्ट एज एक्टिव साइट. तो पॉइजन जो होता है ये इसी एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है. पॉइजन इसी एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है. तो जाहिर सी बात है अगर एक एंजाइम में एक से ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगी, फिर इन एक्टिव साइट्स पे अगर सपोज 3 में से एक एक्टिव साइट पे पॉइजन अटैच हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अब 2 ही एक्टिव साइट्स रह जाते हैं. तो क्या होगा? Naturally, rate of the reaction will be decreased by 3 times, or activity of this enzyme will be reduced by 1/3. अब अगर 3 में से 2 साइट्स पे पॉइजन अटैच हुआ तो क्या होगा? 2/3 एक्टिविटी डिक्रीज होगी. और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जितनी एक्टिव साइट्स एंजाइम पे होते हैं उन सब साइट्स पे पॉइजन अटैच हो जाता है. तो जब पॉइजन ने हर एक एक्टिव साइट को कवर किया तो अब एंजाइम पे कोई एक्टिव साइट रहती ही नहीं है. तो इसका नतीजा ये निकलता है कि ये एंजाइम जो है इट टर्न्स इनइफेक्टिव, फिर ये कोई काम ही नहीं करता है. इन सच केसेस व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स आर पॉइजनड बाय दीज इनहिबिटर्स, तो फिर यहां पर एंजाइम की एक्टिविटी जो है दैट इज कंप्लीटली लॉस्ट. एंजाइम काम ही नहीं करता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर लेंगे या एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर लेंगे, ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं. जैसे मैंने बता दिया एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं ये एक्टिव साइट्स पे अटैच हो जाते हैं. तो इस तरह से ये 6 जो हैं दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स. तो इसमें मैंने पहला कैरेक्टर बताया स्पेसिफिसिटी यानी हर रिएक्शन के लिए अपना अलग एंजाइम,
एक एंजाइम सिर्फ एक रिएक्शन में इस्तेमाल होगा, ये किसी दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया एफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी इनकी एफिशिएंसी 10 रेज़्ड पावर 22 तक बढ़ जाती है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट, ज्यादा कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कैटलिस्ट के दौरान एंजाइम रिजनरेट होता है, वो फिर दोबारा से रिएक्शन में हिस्सा लेता है। इसी तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर मैंने बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम एक्टिविटी सबसे बेहतरीन होती है, सबसे बढ़िया होती है। इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी उस पर असर पड़ता है। इसी तरह से बेस्ट पीएच जिसपे एंजाइम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है, दैट इज 7.5। इसी तरह से एंजाइम एक्टिवेटर्स के बारे में मैंने बता दिया, ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होकर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें एंजाइम एक्टिवेटर्स कहते हैं, या इन्हें हम को एंजाइम्स कहते हैं या प्रोमोटर्स कहते हैं। तो को एंजाइम्स जो हैं ये जनरली नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, विटामिन या तो ये मेटल आयन्स हो सकते हैं। इसी तरह से छठा और लास्ट पॉइंट है एंजाइम इनहिबिटर्स। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होके एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट इज डिपेंड्स अपॉन वेदर द पॉइजन हैज गॉट अटैच्ड टू ऑल द साइट्स और टू सम साइट्स। और कोई साइट रह जाती है अटैच होने से तो फिर एंजाइम अपना काम करता है मगर कम। अब अगर सारे साइट्स अटैच हो गए बाय पॉइजन तो फिर एंजाइम काम ही नहीं कर पाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो इसमें अब एक और छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन या एंजाइमेटिक कैटालिसिस। जो है एंजाइम्स किस तरह से काम करते हैं उसके लिए एक थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी जिससे हम लॉक एंड की थ्योरी कहते हैं। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि होता क्या होगा। तो इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।